तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ जुड़ी ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ श्री दमदमा साहिब ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब का ਅਤੇ दुनिया भर ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਹੜ ਵਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੇਨੇ ਪੱਤਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 12-15 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ 7-8 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ 1-2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗੀ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਇੰਚਾਰਜ, 3 ਇੰਚਾਰਜ ਆਏ ਨੇ, 2 ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ,
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2 ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ TV ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਕੋ ਕੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। रिजल्ट आने शुरू हुए, दिल्ली के स्कूलों के बच्चे IIT और बड़े बड़े कंपटीशन के टेस्ट क्लियर करने लगे। एक कलेक्टर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ने जब लगे। आप लोग इस बात के गवाह हो, अपने कैमरों में बहुत बार उन स्कूलों का रिजल्ट को दिखाया होगा। तो बड़े बड़े दुनिया भर के जो लोग थे वो स्कूलों को देखने के लिए आए,
के स्कूल देखने हैं दिल्ली के, तो दिल्ली में जो चैलेंज आए और लेकिन कामयाबी हुई और प्राइवेट स्कूलों से निकालकर पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराने लगे, तो ये देश में पहली बार हुआ, शिक्षा क्रांति हुई। तो पंजाब में सरकार बनी तो हमने भी गारंटी लिख के दी लोगों को अपने मैनिफेस्टो में कि हम पंजाब के स्कूलों की शिक्षा को, पंजाब की हेल्थ को, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बना देंगे। जब अरविंद जी माननीय हमारे नेशनल कन्वीनर जो हैं वो हमारे साथ रोड शो करते थे पंजाब में, तो इन्हीं में से बहुत से टीचर इनके स्कूलों के सामने से हम रोड शो लेके निकलते थे, तो हम यही वादा करते थे कि थोड़ी देर रुक जाओ, यही स्कूल जो है शानदार होंगे, यहाँ से अच्छे रिजल्ट आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो हमने डाटा तैयार किया, होमवर्क किया। आज पंजाब के सरकारी स्कूल जो हैं शानदार बन गए। 157 बच्चे पहली बार हुआ है, 157 सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट आईआईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं। 8000 स्कूल, हमारे 19,000 से ज्यादा स्कूल हैं, 8000 स्कूल ऐसे थे जहां चार दीवारी ही नहीं थी। हजारों स्कूल ऐसे थे जो सिंगल टीचर स्कूल थे, हजारों स्कूल ऐसे थे जहां बाथरूम ही नहीं थे। तो हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट बढ़ाया, शिक्षा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, अभी भी चल रहा है काम। और फिर हमने दिल्ली के मॉडल से शिक्षा ली, सिंगापुर भेजना शुरू किया हमारे प्रिंसिपल्स को। वहाँ पे प्रिंसिपल ट्रेनिंग एकेडमी है सिंगापुर में, वो वर्ल्ड फेमस है। 202 प्रिंसिपल हमारे अभी तक सिंगापुर से ट्रेनिंग लेके अपने कुलीग को, यहाँ पे आके अपने कुलीग्स को ट्रेनिंग देके बड़े शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। 152 हमारे टीचर्स को हमने IIM अहमदाबाद भेजा, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई के लेटेस्ट तरीके, बच्चों को समझाने के लेटेस्ट तरीके सीखे और यहाँ पे आके वो काम कर रहे हैं। आज 72 हमारे जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूलों के, मुढ़ली शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के टीचर हैं, वो फिनलैंड जा रहे हैं। 3 करोड़ का बजट है, सरकार स्पॉन्सर कर रही है और फिनलैंड में पूरी दुनिया से लोग, नंबर 1 ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, उसी को हमने सिलेक्ट किया। और 72 टीचर हमारे पूरे पंजाब से चुनने का क्राइटेरिया, हर टीचर जिसने अप्लाई किया कम से कम 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स से उनको रिकमेंडेशन चाहिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसको अगर और तराश दिया जाए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। और 10 जो उस स्कूल में पढ़ के जा चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की, उन टीचर से पढ़ के जा चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन। 600 एप्लीकेशन है, इसका मतलब 6000 पेरेंट्स की रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं। ये कोई, इसमें हमने कोई पर्चियां नहीं निकाली, पूरे पंजाब से हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से 3 है, किसी से 1 भी है। तो हमारा मकसद है स्कूली शिक्षा को शानदार बनाना, और हम 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, जिनमें से 14 का उद्घाटन हो गया, 13 अभी रेडी हैं। वो क्या है, 9th, 10th, 11th, 12th, तब तक बच्चे का माइंड पता चल जाता है ये बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, अगर वो साइंस में जाना चाहता है साइंस में लेके जाते हैं, अगर वो मैथ्स में जाना चाहता है मैथ्स में लेके जाते हैं, इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में ले जाएगा। जब तक 12 करके वो कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा तब तक उसको पता होगा कि मैंने क्या बनना है। अदरवाइज करियर गाइडेंस नाम का हमारे देश में कोई चीज ही नहीं है। 2 राज्यों में सरकार है हमारी, दोनों राज्यों में
स्कूली शिक्षा पूरे देश से बढ़िया है। 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 23वां भी आ गया हरियाणा। किसी एक राज्य का रिजल्ट दिखा दें, स्कूल दिखा दें ऐसा। ये स्कूलों की बात ही नहीं करते, ये अस्पतालों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली की, पानी की बात ही नहीं करते। ये तो बस पोलराइजेशन की बात करते हैं। ये अलग है, ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हारा टूटी छीन के ले जाएगा, ये तुम्हारे रोटी छीन के ले जाएगा, ये तेरे घर के सामने गड्ढा खोद देगा। ये उनकी मतलब राजनीति है। सो आज के जमाने में जहाँ एजुकेशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी के दूध जैसी है, जो भी उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने जिस हालातों में से उठकर पढ़ाई की, इस लेवल की, विदेशों में जाके पीएचडीज की, तो उनका सपना पूरा करने वाले। क्योंकि स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों में। और आम आदमी पार्टी का, अरविंद जी का, पंजाब सरकार का, हमारा ये एक सपना है, इच्छा है। हम आम लोगों की मजबूरी को मर्जी में बदलना चाहते हैं। आज आम लोगों की मजबूरी है, अगर कोई बीमार हो जाए प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है, सरकारी पे यकीन नहीं रहा, सरकारी अस्पताल पे मशीनें नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं। अगर प्राइवेट में कराओगे सब कुछ बिक जाएगा, मजबूरी है। दिल्ली में शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, दिल्ली में सब इलाज फ्री होता है, पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के टेस्ट तक। ऐसे ही पंजाब में चल रहा है। शानदार सरकारी हॉस्पिटल बन रहे हैं और डॉक्टरों को भर्ती किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ऐसे ही स्कूल, सरकारी स्कूलों का है। लोगों की मजबूरी है कि प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि सरकारी स्कूल पे यकीन नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दियां नहीं है। लोग सोचते हैं जब अपनी तो जैसे तैसे करके कट गई, बच्चे को तो पढ़ा लें, और सरकार प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सब कुछ बिक जाएगा, फीस इतनी है। ये मजबूरियां हैं। आने वाले चंद दिनों में ही, फ्यूचर में, पंजाब में ये मजबूरी, दिल्ली में तो उन्होंने कर दिया काम, पंजाब में ये मजबूरियां मर्जियां बन जाएंगी। आपकी मर्जी है, इलाज प्राइवेट से करवाना प्राइवेट से करवा लो, सरकारी से करवाना सरकारी से करवा लो, इलाज एक जैसा ही है। हाँ, उधर पैसे लगेंगे, इधर पैसे भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही स्कूलों का है। प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो बच्चा, सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो। पढ़ाई का लेवल जो है वो सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर तो फीस भी नहीं लगेगी। तो इस पैटर्न पे हम चल रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और बच्चे जो हैं, बच्चे जो हैं कुल, और पहली बार हुआ है, मैं नेशनल मीडिया खड़ा है, कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हुई है। सरकारी स्कूलों में पीटीएम नहीं होता था, हमने ये शुरू किया। 20 लाख पेरेंट्स आए। अभी भी मेगा पीटीएम हमारी आने वाले दिनों में है। कम से कम टीचर्स को ये पता हो कि बच्चा स्कूल के बाद कौन से माहौल में रहता है, कौन सी संगत में रहता है। पेरेंट्स को ये पता हो, माता पिता को पता हो कि स्कूल में बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। आपस में उनका जो है तालमेल होना चाहिए। तो हर साल हमारे पीटीएम होती है और बहुत खुश हैं। मतलब रिक्शे वाला अपना रिक्शा छोड़ के 1 घंटे के लिए अपने बच्चे के लिए आ रहा है कि 1 घंटा रिक्शा नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चे की आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। कितनी खुशी होती होगी उसको कि मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे के बारे में कमियां और मेरे बच्चे की खूबियां बताई जा रही हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पढ़ाई सिर्फ टीचर्स या किताबों की नहीं है, पेरेंट्स भी साथ में। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उसमें तो पढ़ना ही पेरेंट्स को पड़ता है, जो जितना होमवर्क है वो करना ही पेरेंट्स को पड़ता है, साथ साथ में दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है ज़िंदगी में। तो बच्चों को निखारने के लिए, बच्चों के टैलेंट को और तराशने के लिए टीचर्स को तराशना पड़ेगा। तो हमारा ये आज 72 टैलेंटेड टीचर्स का जो ग्रुप है वो फिनलैंड 3 हफ्ते का ये टूर है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कैंप लगेंगे, अलग अलग विषयों के बारे में बताया जाएगा और आके ये अपने कोलीग्स को भी बताएंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे।
कोई सवाल आपका हो। साहब ये सवाल ये है कि पहले ये देखिए एक प्रथा थी कि मंत्री जाते थे के अधिकारी जाते थे, लेकिन दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ने ये प्रथा बदली जी। और खुद शिक्षकों और प्रिंसिपलों को भेजना शुरू किया। क्या लगता है ऐसा करने से कि मंत्री न जाए शिक्षक जाए, ये प्रथा में बदलाव करने? नहीं, बिल्कुल से देखो, जो जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना है आप उनको बताइए ना, उनको भेजिए, उनको ट्रेन कीजिए। अभी इन्होंने पढ़ाना है आके, अभी 20-20 साल की नौकरी है, किसी की 22 साल की नौकरी है, और पहली बार कह रहे हैं जी पहली बार हम दिल्ली आए हैं। बहुत से कह रहे हैं पहली बार दिल्ली आए हैं। आज पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। अब कहीं से भी ट्रेनिंग मिलती है तो ले लो। पहले सिंगापुर भेजते रहे हैं, अहमदाबाद भी भेजते हैं, फिनलैंड का ये पहला टूर है, आगे वाले बैचेस भी जाते रहेंगे। पहले क्या था, स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही था, ओलंपिक में खिलाड़ी कम जाते थे, नेता ज़्यादा जाते थे, और खिलाड़ी इकोनॉमी क्लास में जाते थे, नेता फर्स्ट क्लास में जाते थे, और उनका कोई लेना देना नहीं है मेडल जीत रहा है कोई, वो तो अपना मतलब ऐश करने के लिए, घूमने के लिए परिवार के समेत जाते सरकारी खर्चे पे। आम आदमी पार्टी का ये है कि भाई सरकारी पैसा खर्चना है, सरकारी पैसा मीन्स लोगों का पब्लिक मनी, तो उन पे खर्चो ना, जो टैक्स दे रहे हैं उनके बच्चों पे खर्चो, अस्पताल बनाओ, बिजली हमने फ्री कर रखी है। पंजाब में जब हमने टेक ओवर किया था 16 मार्च 2022 में 21% नहरों का पानी, कैनाल वाटर जो है वो खेतों में इस्तेमाल होता था, आज 84% हो रहा है। हमारे पास पानी है, कोई हम इधर उधर से नहीं लिया, पानी है, लेकिन चैनलाइज कर दिया। पुराने जो बंद हो गए थे, जो खाले बंद हो गए थे, कस्सियां, सूए, रजवाहे, अब खेतों में जा रहा है पानी, लोग खुश हैं। तो नीयत चाहिए, और नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, पंजाब सरकार ने ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਸਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो ये पराली का मुद्दा जो है, ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, कोई उसके नतीजे, साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी एमएसपी नहीं मिलती। तो बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहाँ तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन, डैमेज, उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं, पंजाब का धुआं आता है पता नहीं ना, वे तो एनजीटी के जो रिटायर जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पहले तो जब आग हमारे यहाँ पराली को लगती है, उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना, वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं, अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो, मैंने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, 2 ही काफ़ी और ही माफ़ी, क्या जनसंख्या होगी कम कंट्रोल में?
क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने? प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है तो। इसीलिए हम बहुत कुछ करें, हमने 1.25 लाख मशीनें दी हैं इस बार, और एनजीओ से बात करके, और कुछ किसान, हमारे सभी किसान नहीं चलाते, 75 लाख एकड़ हमारा, 75 लाख हेक्टेयर हमारा धान आता है, उसमें से लगभग 40 लाख नहीं जलाते। उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों को भी करिए, हो जाएगा कम। और एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो आते रहते हैं हमें गाइडलाइंस, हम फॉलो करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम तो चाहते हैं कि हमें तो गुरु नानक साहब ने सदियों पहले लिख दिया था वाणी में, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा, और धरती को माँ का दर्जा, कि ये तीनों दर्जे कायम रख दिए। तो हम तो ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ मतलब विश्वास रखते हैं कि हम गुरुओं की वाणी को, उनके वचनों को हम फॉलो करें। सर, ये प्राइमरी टीचर्स का फर्स्ट बैच जा रहा है फिनलैंड, सर आगे और कितने बैचेस जाएंगे? आगे आने वाले दिनों में आते जाते रहेंगे। प्रिंसिपल्स भी गए थे पहले, मिडिल वाले भी गए थे, अभी ये बच्चे हैं। और इनसे, मेरे से ज़्यादा ना, मेरे पास तो ये माइकों का ढेर जो है ना, ये लगा ही रहता है। इनसे ज़रा पूछिए कि वो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। दिवालिया, मैंने इनको कहा है कि दिवाली आपने बहुत सी मनाई होंगी, लेकिन याद नहीं होगी कोई। एक दिवाली छोड़ के देखो, इस बार ये दिवाली वहीं मनाएंगे, ये सारी उम्र याद रहेगा कि हम एक बार वहाँ विदेश में गए थे, तब दिवाली यहाँ थी। तो बच्चों के भविष्य के लिए, और पंजाब को नंबर 1 स्टेट बनाना है, तभी देश नंबर 1 बनेगा। पंजाब हमेशा हर लहर में पंजाब लीड करता रहा है, चाहे वो हरा इनकलाब है, चाहे वो आज़ादी का संघर्ष है, चाहे वो कोई भी देश में कोई इनकलाब या कुछ चेंज, बदलाव, तो पंजाब लीड करता है। अभी आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली के बाद सीधा ही पंजाब में पहले 4 MP, उसके बाद 20, उसके बाद 92। तो पंजाब जो है वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं हम। जो आज़ादी में हमारे 90% योगदान है हमारा। अब हमें कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे तो अच्छा नहीं लगता। देश ही हमने लेके दिया है। हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे, हमारे शहीदों ने तशद्दुद आज़ादी के समय जेलें काटी हैं। तो पंजाब जो है वो बहुत ही सेंटिमेंटल स्टेट भी है। प्यार से जो मर्जी हमसे ले लो, लेकिन हमारे साथ अगर कोई बेइंसाफ़ी होगी तो प्रोटेक्ट करें।